बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Now we are going to learn future continuous tense. Before this tense, we have learned future indefinite tense, and future indefinite tense we have in future indefinite tense we have learned a lot of things related to future actions, and we learned passives as well as actives. Hope so you all students have made a lot of practice about future indefinite tense, and the way you're given whom task, whom assignment, you definitely work on that, you practice on that, and definitely it will help you a lot to express your all actions, whatever actions will happen later. So now today at the moment I am going to teach you future continuous tense. What a beautiful tense it is. It is all about continuous actions, as we have already learned present continuous tense, the actions which were continuous at present time. After that we have learned past continuous tense, the actions which were continuous but in past. Now we are going to learn the actions which will remain continuous, which will be continuous in future. So we are going to learn through future continuous tense how to express future continuous actions, right? So hope so you will understand it, you will get it as well. Now look at the whiteboard. First of all, the word future, it always indicates upcoming time. Continuous mean the actions which are in progress, which are continuous. After that, tense indicates time of an action. Action matters a lot in tense, right? So these three things you have got, and now I'm going to write its recognition. What is its recognition? Recognition. In the end of Urdu sentences there is रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, right? When you will find future continuous tense, so you will find ending with रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. I just make it a little comparison between among different tenses, like present indefinite tense, present continuous tense. Present continuous tense मैं चाय पी रहा हूँ. Past continuous tense मैं चाय पी रहा था. Future continuous tense मैं चाय पी रहा हूँगा. मैं चाय पी रहा हूँगा. मैं 5 मिनट के बाद चाय पी रहा हूँगा. मैं 2 मिनट के बाद मैच खेल रहा हूँगा. मैं 2 मिनट के बाद क्लास ख़त्म कर रहा हूँगा. जब इस तरह की चीज़ें आ जाएँ तो हमने किस टेंस में एक्सप्रेस करनी है? फ्यूचर कंटिन्यूस में. उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है हेल्पिंग वर्ब्स. अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं शैल बी और विल बी. आपने शैल बी और विल बी को पहले भी देख लिया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब हमने पढ़ा था, एक्टिव में शैल और विल थे, पैसिव में शैल बी और विल बी हो गए थे. लेकिन फ़र्क ये होगा, उधर विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और इधर कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म. यानी कि इस टेंस में हम वी कौन सा यूज़ करेंगे? वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे? V4, राइट? ये तीन चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए कि मैं चाय पी रहा हूँगा, मीन ये पहचान है इसकी. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, राइट? आफ्टर दैट शैल बी और विल बी इसके क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और इसमें जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो कौन सा है? V4 है. अब कंटिन्यूस टेंस हमारे कंप्लीट हुए. एक चीज़ आपने लाजमी सीख ली होगी, वो कौन सी? प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखें वहाँ पे भी V4 है. पास्ट कंटिन्यूस में देखें वहाँ पे भी V4 है. फ्यूचर कंटिन्यूस देखें तो यहाँ पे भी क्या है? V4 है. इसका मतलब है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब है, ये तो कन्फ्यूजन या ये तो केस ख़त्म हो गया. क्यों? आपने सिर्फ ध्यान में रखना है कंटिन्यूस टेंसेज में हम
एक्टिव में कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब फोर यूज़ करेंगे, इनके वी फोर यूज़ करेंगे, इनके वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है और प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद शेल बी और विल बी, ये आपको पता है कि आई और वी के साथ क्या आ जाएगा, शेल बी, और बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल बी। होप सो कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखने की वजह सिर्फ ये है कि आपको पता है ये वो टेंस है जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता। इसके क्या होता है, सिर्फ एक्टिव होता है। इसके एक्टिव में ही क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन एक्टिव टेंसेज एंड पैसिव टेंसेज का या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अगर आपको पता हो तो उसमें जो हमने टेंसेज जो पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते जब एक्सक्लूड किए थे तो उसमें एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी था। अब देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है। सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे आप, सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, विल बी और शेल बी, विल बी या फिर शेल बी, और इसके बाद हमारे पास क्या है, वी फोर, और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, या फिर आ जाएगा शेल नॉट बी, विल नॉट बी, या फिर क्या आ जाएगा, शेल नॉट बी। उसके बाद क्या हमारे पास आ जाएगा वी फोर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विल, या फिर क्या आ जाएगा, शेल, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बी, बी के बाद वी फोर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे विल, या फिर लिखेंगे शेल, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, वी फोर, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। ये वो चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब हवाले से। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका लिख दिया गया है। विल बी शेल बी आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी देखा, लेकिन वहाँ पे विल बी और शेल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, क्यों, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव था। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, ये इसका एक्टिव है, लेकिन आपने दोनों में डिफरेंस जो करना हो, डिफरेंशिएट जो करना है आपने, डिफरेंस इनके फील करना है आपने, वो किस तरीके से करना होगा। उधर विल बी और शेल बी के बाद वी थ्री थी, इधर विल बी और शेल बी के बाद क्या है, वी फोर है। उधर स्टार्ट में क्या आता था, ऑब्जेक्ट, इधर स्टार्ट में क्या है, सब्जेक्ट। इनके मतलब है कि ये सारा एक्टिव में है, इसका पैसिव नहीं बनता। अब देखें सेंटेंस में लिखता हूँ, यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि वही सेंटेंस लिखूँगा जो हमारा एक ट्रेडिशनल सेंटेंस चला आ रहा है। मैं कहता हूँ मैं चाय थोड़ी देर बाद, मैं थोड़ी देर बाद चाय पी रहा हूँगा, मैं थोड़ी देर बाद चाय पी रहा हूँगा। हाँ, यहाँ पे आपने समझना होगा कि अब देखें आई में लिखूँगा, आई के साथ वैसे विल आना चाहिए या शेल आना चाहिए, थोड़ा सा गौर करें, लिखा हुआ है वाइट बोर्ड के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि अक्सर चीज़ें हम प्लेस कर देते हैं कहाँ पे, वाइट बोर्ड के ऊपर लिखी होती हैं, सामने होती हैं, लेकिन जब टीचर्स बाज़ पूछते हैं स्टूडेंट से तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे जी, फिर इधर उधर देख के सोचते हैं पता नहीं कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, हालांकि वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो पहले आपको बता दी गई है। जब दोबारा पूछा जाता है ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए आया कि आप क्लास के अंदर ही है ना। बाज़ का होता है कि आप मेंटली क्लास के, फिज़िकली क्लास के अंदर होते हैं, मेंटली आप कहीं और गए होते हैं। तो ये सिर्फ आपको दचका झटका देने का मकसद ये होता है कि आप इधर ही हैं ना या कहीं बाहर हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि इतने प्रेशर में आके फॉर्म ही गलत बता देते हैं, क्यों, उस वक्त कोई पता नहीं होता कि हम मेंटली किस जगह का विजिट कर रहे होते हैं, राइट। तो इस वजह से अभी देखिएगा कि हम आई के साथ क्या लगाएंगे, शेल। तो क्या हो जाएगा, आई शेल बी टेकिंग, आई शेल बी टेकिंग टी
आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल, आई शैल बी टेकिंग टी आफ्टर अ वाइल, मैं थोड़ी देर बाद क्या कर रहा हूँगा, चाय पी रहा हूँगा। अब देखिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा, मैंने उधर लिखा आई, ये समझे आई है, उधर मैंने लिखा शैल बी, आई के साथ शैल बी आता है, उसके बाद मैंने V4 लिख दिया, टेकिंग ING, ठीक है जी। तो आई शैल बी टेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया टी, आफ्टर अ वाइल, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद जब नेगेटिव इसका बनाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी, आगे ये सेम टू यू है, यानी सेम है जैसे ऊपर है, ठीक है। आई शैल बी, आई शैल नॉट बी टेकिंग टी। अब देखें आई शैल नॉट बी टेकिंग टी, आप इसको जब बनाएंगे, अगर आपको इंग्लिश बेहतर है आपकी तो आप तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखिएगा कि आया कि स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है या नहीं करता। अगर आप समझते हैं कि पहले आप नहीं लिख सकते, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लें, पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट आई हो गया, फिर इस तरह करते करते आप एंड तक चले जाएं। उसके बाद जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं थोड़ी देर बाद चाय पी रहा हूँगा, अब देखिए मैं इसको इस अंदाज में करने की कोशिश करूँगा, मैं लिखूँगा क्या मैं, क्या, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे शैल, उसके बाद क्या होगा आई, उसके बाद क्या लिखूँगा बी, शैल आई बी, उसके बाद टेकिंग, शैल आई बी टेकिंग, उसके बाद क्या होगा टी, राइट, शैल आई बी टेकिंग टी। देखें शैल आई बी टेकिंग टी, क्या मैं थोड़ी देर बाद चाय पी रहा हूँगा। उसके बाद देखें विल और शैल, ये जो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है इसमें क्या होगा विल और शैल, तो हमने सब्जेक्ट के हिसाब से शैल बनता है तो क्या आ जाएगा शैल आई। उसके बाद क्या आएगा नॉट, नॉट के बाद क्या है बी, आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म है टेकिंग, और चाय को टी कहते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे भी कि वाकई चाय को टी कहते हैं, राइट। ये बेसिकली आपका क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा लिख दिया कि मैंने। अब इसके कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा, वो आपने क्या करने होंगे, प्रैक्टिस करने होंगे। अब देखें इस टेंस को आपने प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए आपको टास्क देता हूँ, राइट। तो ये टास्क बेसिकली इस तरह नहीं होगा कि एक्टिव से पैसिव, ये बेसिकली मैं देने जा रहा हूँ आपको सेंटेंसेस उर्दू में, आपने उनको क्या करना होगा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और फिर 2-3 सेंटेंस में गलत लिखूँगा, इस टेंस के मुताबिक आपने उनको करेक्ट करना होगा। बाज़ वो किसी और टेंस में भी जाके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपने इस टेंस के मुताबिक जाके इनको क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। आया कि मैंने वो सेंटेंस जो गलती की है वो हेल्पिंग वर्ब की गलती की है या वर्ब की गलती की है, या बीच में कोई लफ्ज़ मिसिंग है। सबसे पहले मैं उर्दू में सेंटेंस तो बोलूँगा, लेकिन इंग्लिश में जो गलत सेंटेंस मैंने लिखने हैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्ट द फॉलोइंग sentences according to कौन सा टेंस है हमारे पास, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, राइट। अब देखें सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहला सेंटेंस, आई शैल बी टेक बाथ, आई शैल बी टेक बाथ। आपने देखना है कि इसमें गलती कौन सी है, लेकिन ये जहन में रखिएगा, ये नहीं कहना कि ये टेंस हम किसी और टेंस में भी जाके इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रूल बताए हैं, जो टेंस बताया जा रहा है, इसके मुताबिक आपने करेक्शन करनी होगी कि यहाँ पे किस चीज़ की गलती है। आपने गलती को खुद से ढूंढना होगा कि मैंने इस सेंटेंस में गलती कौन सी की है। दूसरा सेंटेंस है दे शैल नॉट बी टेकिंग, they shall not be taken tea, they shall not be taken tea।
बाज़ का तो आपने देखना होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव तो बन सकता है, ठीक है, लेकिन आपने देखना है कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस के टेंस के मुताबिक ये ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शी प्रेस माई क्लोथ्स, शी प्रेस माई क्लोथ्स। अब देखना क्या ये टेंस इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर गलत है तो इसको ठीक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखता हूँ मैं दे विल नॉट बी appearing in this test, यहाँ पे फिर मैंने टी लिख दिया क्योंकि टी बहुत छाया हुआ है, ठीक है। दे विल नॉट बी अपेयरिंग, APPEARING, दे विल नॉट बी अपेयरिंग इन दिस टेस्ट। आपने देखना होगा ये सेंटेंस में गलती है तो कौन सी है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, वो देखना होगा क्या है कि ये रूल्स के ऊपर मुताबिक है या नहीं है। उसके बाद आखिरी सेंटेंस लिख के अली विल नॉट कम हेयर, अली विल नॉट कमिंग हेयर, अली विल नॉट कमिंग हेयर। यहाँ पे देखना कौन सी गलती की है, ठीक है जी। अब इसके साथ हमारा जो आज का सेशन है, टास्क है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब जो नेक्स्ट में उर्दू में सेंटेंस बोलूँगा उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। हम कल इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे होंगे, मैं आपको कल 10 बजे पढ़ा रहा हूँगा। आमना अपने फैमिली के लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। हम 5 बजे घर से निकल रहे होंगे। और आखिरी सेंटेंस, क्या आप 2 बजे दिन का खाना खा रहे होंगे, यानी कहने का मतलब है कि आप 2 बजे लंच कर रहे होंगे। तो ये सेंटेंस हमारे जो मैंने अभी बोले हैं एक दफ़ा, इनको आपने क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इनको आपने करेक्ट करना है, राइट। किसी किस्म का कन्फ्यूजन, कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस, राइट। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा ताकि जो जो आपके वहाँ पे आते जाते हैं, जो जो चीज़ें आएँ हम उनको देखें, फिर उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की, शानदार किस्म की वीडियो बन सकती है। होप्स हो कि आप इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे, इन चीज़ों को सीरियस लेंगे। और आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।